The American Constitution is the first to begin with a preamble. What does this preamble means? जैसे जब आप कोई सामान खरीद कर लाते हो तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जिसके अंदर उसके कंटेंट, उसके डिस्क्लेमर, हाउ टू यूज दैट थिंग, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती है. सिमिलरली द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके प्रीफेस पार्ट को हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 22nd January 1947 the Constituent Assembly had finally accepted the objective resolution that was passed by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th December 1946. That had already been discussed in the previous video, making of the Constitution. If you haven't watched it, please go and watch it first. I'll put that link into the description. The preamble is based on that objective resolution. The preamble in its present form reads as follows. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, we hereby adopt, enact, and give ourselves our Constitution. This is the present form of the preamble. What are the ingredients of the Constitution? मतलब क्या क्या डाला गया है preamble के अंदर, क्या ingredients हैं उनके? The first is the source of the authority. Who is the source of the authority? We, the people of India. We made our own Constitution. We elected a Constituent Assembly on behalf of us. They drafted our Constitution. The second is nature of the Indian state. What will be the nature of Indian state? That will be sovereign, secular, socialist, democratic, and republic. The third is objective of the Constitution. What is the objective of it? That is to secure all citizens justice, liberty, equality, and fraternity. And date of adoption, that is 26 November 1949. ये सारी चीजें प्रीएम्बल के अंदर रखा गया है. तो हम ये चीजों को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स हैं. नाउ कमिंग टू द कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल. क्या कीवर्ड्स हैं उसके अंदर? द फर्स्ट इज सॉवरेन. व्हाट डज सॉवरेन मींस? द सॉवरेन टर्म इन द प्रीएम्बल implies that India is neither a dependent nor a dominion of any nation. इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी अदर नेशन का डोमिनियन नहीं. इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन अफेयर्स एंड टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स. मतलब वो अपना काम खुद देख लेगा, किसी पे अधीनता नहीं है उसकी. द सेकेंड टर्म इज सोशलिस्ट. द टर्म सोशलिस्ट वाज इनिशियली नॉट देयर इन द प्रीएम्बल. It was added in 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act. जो socialist term है, that was the theory of Gandhi and Nehru to make a welfare state, जहाँ पे poverty, inequality जैसी चीजों को remove करके, eradicate करके काम कर सकते हैं. The third keyword is secular state. Actually, this word was also not there in the preamble initially, but it was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. In 1976, the Supreme Court said that the term secular state is not there in the preamble, but the Constitution maker secured it by putting it into the fundamental rights between Article 25-28, that is right to freedom of religion. Everyone have their own choice to follow any religion, any belief. अब जब बात सेकुलर स्टेट की आ गई है तो तीन तरह के स्टेट होते हैं. द फर्स्ट इज एस्थेटिक स्टेट, जहां पे सारे रिलीजन को ही गलत माना जाता है. द सेकेंड इज थियोक्रेटिक स्टेट, जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. द थर्ड इज सेकुलर स्टेट लाइक इंडिया एंड यूएसए एटसेट्रा. फोर्थ कीवर्ड इज डेमोक्रेसी. Demo means people and cratic means rule. These are the Greek words. अब दो तरह के डेमोक्रेसी होते हैं. द फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी.
पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज देयर पावर्स डायरेक्टली लाइक इन स्विट्जरलैंड। 4 तरीके से पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज रेफरेंडम, सेकंड इज इनिशिएटिव, थर्ड इज रिकॉल एंड फोर्थ इज प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, अगर वहां पे लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो वो पब्लिक वोटिंग पे जाएगा एंड पब्लिक विल डिसाइड वेदर दे विल फॉलो, दे विल एक्सेप्ट दैट रूल और नॉट। द सेकंड इज इनिशिएटिव, जहां पे पीपल जाके एक लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक बिल को पास करवा सकते हैं। द थर्ड इज रिकॉल, अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई जो एग्जीक्यूटिव वो चुने हैं, जो एग्जीक्यूटिव या कोई ऑफिसर है जो अपना काम नहीं कर रहा, तो वो अपने ड्यूरेशन खत्म होने से पहले उनको वो हटा सकते हैं। पीपल हैव गॉट दैट पावर। द फोर्थ इज प्लेबिसाइट, ये जनरली यूज होता है जब कोई टेरिटोरियल इशू होते हैं, जब टेरिटरी को लेके कोई इशू होते हैं। लाइक इंडिया में जो प्लेबिसाइट है दैट वाज यूज्ड इन जूनागढ़। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उनका पार्टीशन हो रहा था, तो जूनागढ़ जो गुजरात के साइड के एरिया में थे, जूनागढ़, वो किनके पास जाते, पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास, तो वहां पे प्लेबिसाइट वाला फंडा यूज किया गया था। पब्लिक वोटिंग होती है कि आप किनके साइड जाना चाहते हैं, दैट इज प्लेबिसाइट। तो ये 4 तरीके हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। नाउ कमिंग बैक टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, नाउ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप्स, द प्रेसिडेंशियल एंड parliamentary. India follow parliamentary form of indirect democracy, while USA follows presidential type of indirect democracy. अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कीवर्ड्स को समझते हैं। The first is justice. The term justice was taken from Russian Revolution that was held in 1917. अब ये जो जस्टिस है उसको थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में लिया गया है। 3 चीजों को एम्ब्रेस करते हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। द सेकंड कीवर्ड इज लिबर्टी। अब कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। पीपल हैव गॉट देयर लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फॉलो एनी रिलीजन। ये सारी चीजें एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स में भी रखे गए हैं और यहाँ भी मेंशन किया गया है। द थर्ड इज इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी की ही बात की गई है कि पीपल शुड नॉट बी, द पीपल ऑफ इंडिया और द सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन देयर कलर, क्रीड, कास्ट, जेंडर। इनमें आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 325 भी रखे गए, दैट इज राइट टू वोट है। द नेक्स्ट कीवर्ड इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी जो टर्म है वो ब्रदरहुड को प्रमोट करता है और इंडिया में इस चीज को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप को रखा गया था। और आर्टिकल 51A से ये भी बताया गया है कि इट इज आवर ड्यूटी टू प्रमोट द हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर एटसेट्रा। और 2 चीजों को एम्ब्रेस करता है फ्रैटर्निटी, दैट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है ये बाद में ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है, उसे हमने वन बाय वन हमने समझ लिया। समझते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल क्या है, क्या प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो कुछ ऐसे लीडर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए प्रीएम्बल के बारे में। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, उन्होंने ये कहा था कि प्रीएम्बल वो सारी चीजों को बताता है जिसके सपने हमने देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। The preamble to our constitution expresses what we had thought or dreamt so long. और के एम मुंशी ने ये कहा कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुर भार्गवा जी ने ये कहा कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट
precious soul key jewels set into the constitution. It is a proper yardstick with which we can measure the worth of the constitution. सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रियम्बल को एज ए की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो कि चीफ जस्टिस भी रहे थे, उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ यूएसए, बट इट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन. It is a soul of the constitution which lays down the pattern of our society. तो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसिकली पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आधार क्या है, ये इसका नेचर क्या है, इसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सोर्स कौन है, डेट ऑफ एडॉप्शन क्या, सारी चीज़ों को एक संक्षेप तरीके से बता देता है. अब सवाल ये है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, जो कि 368 आर्टिकल के तहत करते हैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. क्या हम प्रियम्बल में भी क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अगर अमेंडमेंट करना है तो प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना पड़ेगा. तो इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंड द प्रियम्बल एज वेल. ये सारे जवाब मिलते हैं केशव नंदा भारती केस 1973 से और बेल्यूबरी यूनियन केस, जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.